Hello students, welcome back to my YouTube channel Success Point. Today we are going to learn arithmetic progression. Okay students, let's start practice set 3.1. The first question says, which of the following sequences are AP? If they are AP, find the common difference. Now we have to find common differences from the given AP's sequences. So first of all, I'll write the question number 1. First question 2, 4, 6, 8 and dot. It is going so far. Now what to find? We need to find common difference. Common difference हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे. So first term is known as T1 or it can be said as A, and this is the first term 2. Okay, then we will see the second term. T2 is equals to 4, then T3 is equals to 6 and T4 is equals to 8. What to find? We need to find the common difference. So how to find difference? So we know. We will write we know. D is equals to T2 minus T1. Now what is T2? Students, T2 is 4. T1 is 2. So 4 minus 2 is 2. We got D1. D. Now again we will find D1. अभी हमें D मिला है. We will find D1. इसी तरीके से D1. So it will be the formula T3 minus T2. What is our T3? T3 हमारा क्या है? 6 minus T2 क्या है हमारा? 4. We will keep 4. 6 minus 4 is 2. The difference is same. Again we will find T3. D2 is nothing but T4 minus T3. What we will get? T4 is our 8 minus T3 is our 6. We will get 2. Here in all those terms, what we are getting? We are getting the common difference as 2. So we will write here. We will write as per the sentences of your textbook. So I don't want to make it different from your textbook. So we will write thus in this sequence. The final answer I am writing here. In this sequence, difference between two consecutive terms is the same, or we can use constant. Okay, therefore it is an AP. AP means arithmetic progression. Okay, copy the, take the screenshot. Okay students, let's see question number 2. Question number 2 says, second question saying 2, 5 upon 2, sorry, this is 5 upon 2, 3, 7 upon 3. Okay, so this is the question and dot. So here we will write again first term
Now I'm not writing T A, I'm just writing T1. So our T1 is 2, T2 is 5 upon 2. I'm writing here only T3. T3 is 3 and T4 is nothing but 7 upon 3. Okay, so how to solve it? As we will write, we know this is the formula students. How to find differences? डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला है, d इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1. बड़े में से छोटा वाला माइनस करना है, बड़े में से छोटा वाला माइनस करना है, बड़े में से छोटा वाला माइनस करना है. अगर वो सेम आया तो कॉमन डिफरेंस है, अगर सेम नहीं आया तो कॉमन डिफरेंस नहीं है, और कॉमन डिफरेंस नहीं है तो AP भी नहीं है. ओके, सो वी विल चेक हियर. T2 is nothing but 5 upon 2 minus here it is 2. अब देखो स्टूडेंट्स, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है. वी नीड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या दोनों में डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई कर दो. 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब है एलसीएम. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं समझने के लिए. 2 2 जा 4 और अपॉन 2 1 जा 2. यहाँ पर आपको समझना है स्टूडेंट्स, यहाँ 1 है. अगर कुछ नहीं दिया है तो वहां पर आपको 1 दिया होता है, ऐसा समझना है आपको. यहाँ क्या है? 1 है. अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 है. तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया. अब 5 माइनस 4 इज 1 एंड अपॉन 2. तो हमारा d क्या आ गया? हाफ आ गया. d हमें क्या मिल गया? हाफ. उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? d1. वी विल फाइंड d1. d1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? T3 माइनस T2. अब T3 हमारा क्या है? 3. T3 में 3 है और T2 में क्या है हमारे पास? 5 अपॉन 2. 5 अपॉन 2. उसी तरीके से स्टूडेंट सेम एज सेम, इधर डिनोमिनेटर क्या है? 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 जा 6 माइनस 5, 2 1 जा 2. 6 minus 5 is 1 and upon 2. This is our D1. Are you getting me students? We are getting differences as same. This is our difference. Okay students? तो हम क्या करेंगे? उसी तरीके से D2 भी निकाल लेते हैं. D2 is equals to T4 minus T3. T4 क्या है? 7 upon 3 minus T3 क्या है? 3. करेक्ट. सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 7 3 3 जार 9 और अपॉन इसके नीचे क्या है? 1. 3 1 जार 3. तो डिफरेंस देखो यहाँ क्या आ रहा है? -2 अपॉन 3. -2 अपॉन 3. सो स्टूडेंट्स, हमें D2 क्या मिल रहा है? D2 हमें मिल रहा है -2 अपॉन 3. ठीक है. देयरफॉर D2 हमें -2 अपॉन 3 मिल रहा है. तो हमारे पास डिफरेंस D1 दोनों तो सेम आया, बट D1 और D2 सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर इन दिस सीक्वेंस difference between two consecutive numbers are not same or constant. ठीक है. Therefore it is not an AP. ये AP नहीं है. स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपको समझना है. क्वेश्चन में जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम आया वहां पर AP है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया वहां पर AP नहीं है. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. Okay, let's start question number 3. Question number 3 says -10, -6,
-2, 2, dot 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 dot. Okay students, here what we have been given, first term that is t1. अगर हम डायरेक्ट t1 भी लिखेंगे ना स्टूडेंट्स तो भी चलेगा, हम फर्स्ट टर्म नहीं मेंशन करेंगे, दैट्स ओके. -10, t2 is equals to -6, t3 is equals to -2, t4 is equals to 2. What we know? We know the formula. D is equals to T2 minus T1. चलो बताओ T2 क्या है हमारे पास? T2 है -6 -10. ओके, -6 माइनस और माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस बिकम्स प्लस. 10 minus and plus minus, 10 minus 6 is 4. Bigger number sign is 10, so that's why we are not writing plus sign. प्लस हम नहीं दिखा रहे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आ रहा है. D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? T3 माइनस T2. व्हाट इज आवर T3? चलो बताओ. -2 माइनस व्हाट इज आवर T2 इज -6. क्या करेंगे हम लोग? -2 माइनस माइनस प्लस, इट बिकम 6. आंसर क्या आया? माइनस प्लस माइनस, 6 माइनस 2 इज 4. तो हमारे पास D1 कितना आ गया? D1 का वैल्यू आ गया 4. आर यू गेटिंग मी? आई होप सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं ट्राई करेंगे तो. व्हाट इज D2? चलो D2 क्या है हमारे पास? फॉर्मूला इज T4 माइनस T3. नाउ व्हाट इज T4? T4 हमारे पास 2 है, माइनस व्हाट इज आवर T3? इट इज -2. 2 माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 इज 4. अगेन D2 भी हमारे पास कितना आ गया? 4. तो उम्मीद कर रहा हूँ तीन का तीनों हमारे पास ये समझ में आया आपको. द कॉमन डिफरेंस इज 4. कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास? 4 है. अगर कॉमन डिफरेंस 4 है तो what will be the final wordings here? Therefore in this sequence difference between two consecutive numbers are same. आप कांस्टेंट लिख लेना, सेम लिख रहा हूं तो भी चलेगा. Therefore it is an AP. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. मैं उम्मीद करता हूं आप लोग आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मैं कुछ क्वेश्चंस और कर देता हूं जो अलग पैटर्न के होंगे, बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिए. टेक द स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग पैटर्न का है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 says -1/5 कॉमा -1/5 कॉमा -1/5, तीनों टर्म सेम है, कॉमा डॉट 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 डॉट. ओके, यहाँ पर हमारे पास तीन ही टर्म दिया है. अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करके देखना है. लेट्स सी कैसे करते हैं. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों ने फॉर्मेट देख लिया कैसे करना है. इसके लिए मैं डायरेक्ट T1 लिख रहा हूँ. T1 इज 1/5 माइनस 1/5. उसी तरीके से कॉमा T2 भी क्या है हमारे पास? -1/5. फिर उसी तरीके से हमारे पास T3 भी है. T3 इज नथिंग बट -1/5. तीनों भी -1/5 1/5 1/5 है, तीनों भी माइनस में है. तो हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट वी नो D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1. ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमेशा आपको लिखना है. -1/5 माइनस ब्रैकेट में फिर से -1/5. देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास T2 है -1/5 और यहाँ पर हमारा T1 भी -1/5 है. बीच में माइनस आ रहा है, इसके लिए मैंने ब्रैकेट लगाया है
ताकि वो माइनस साइन आपको अलग से मल्टीप्लाई करने में आ जाए। तो फर्स्ट टर्म हम ऐसे ही लिखते हैं -1/5, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/5। डिनोमिनेटर देखो सेम है दोनों का, तो ये माइनस हो सकता है डायरेक्टली, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 1/5 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 0। ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये इजी आपको समझ में आया होगा। फिर से एक और करते हैं, आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स चेक D1, हम D1 देखेंगे। D1 कैसे निकालते हैं, T3 माइनस T2। T3 क्या है, -1/5 है, और उसी तरीके से T2 क्या है, -1/5 है। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला पहले ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि आगे हमारे पास ये माइनस साइन है। ये माइनस साइन जब तक ये ब्रैकेट ओपन नहीं होता तब तक हम इसको माइनस हटाते नहीं, तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर क्या मिल जाएगा मुझे, -1/5 प्लस 1/5। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये एक दूसरे से कट जा रहा है, तो क्या बच रहा है लास्ट में फाइनल आपको 0। ये हमारा D1 मिल गया। D और D1 का 2 ही वैल्यू निकलने वाला है क्योंकि हमें 3 ही टर्म दिया, उसके आगे का टर्म्स नहीं दिया था सीक्वेंस में। और जब हमें D और D1 हमारा दोनों सेम मिल रहा है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो उम्मीद करता हूँ वो आप स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा था इसके पहले तरफ वो आप खुद लिखोगे, और मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, देयरफॉर इट इज एन AP। समझ आया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। प्लीज आप लोग खुद से वो स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में मार्क्स चाहिए यहाँ पे आपको, तो वो आपको स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सेज 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3√2, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है सीक्वेंस में। अब हम क्या करेंगे, T1 लिखेंगे। T1 हमारा क्या है 3, T2 क्या है हमारे पास 3 प्लस √2। ठीक है स्टूडेंट्स, T3 क्या है हमारे पास, T3 भी 3 प्लस 2√2 है। उसी तरीके से हमारे पास T4 भी है। T4 क्या है हमारे पास 3 प्लस 3√2 है। ठीक है, अब हमने ये सब लिख लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू फाइंड। वी नो, हम लिखेंगे, ये फॉर्मेट आप याद ही रख लो स्टूडेंट्स, D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। चलो T2 बताओ क्या है, T2 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 माइनस 3। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स आप लोग जरा सा ध्यान देना, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, कैंसिल। बचा क्या आपके पास √2, प्लस में है इसके लिए प्लस साइन नहीं लिख रहे हम लोग, ये D का वैल्यू आ गया हमारे पास। स्टूडेंट समझ रहा है आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, D1 निकालूंगा। D1 निकालने के लिए रूल क्या है आपको, T3 माइनस T2। T3 क्या है आपके पास वैल्यू 3 प्लस 2√2 माइनस T2 क्या है आपके पास 3 प्लस √2। ये देखो, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन अंदर जाने के बाद इंपोज करेगा, कुछ ना कुछ साइन चेंज करेगा। तो लेट्स सी, चेक करते हैं अभी हम लोग क्या मिलता है हमें वैल्यू, प्लस 2√2 माइनस अंदर जाएगा प्लस के पास तो बन जाएगा माइनस, माइनस प्लस के पास जाएगा तो बन जाएगा माइनस √2। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो ध्यान देना, यहाँ पे +3 है, यहाँ -3 है, प्लस माइनस खत्म। यहाँ पे +2 है, प्लस 2√2 माइनस इसके आगे 1√2 है, तो 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बच जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समझ आ रहा है, यहाँ पर +2√2 है और यहाँ पर 1√2 है, 1 छुपा हुआ है यहाँ पर, तो 1
रूट टू दोनों के पास सेम है, तो 2 माइनस वन इज 1, तो ये 1 छुपा हुआ मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर रूट 2 बच गया। आंसर क्या आ गया आपके पास, D1 का वैल्यू आ गया रूट 2। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन। थर्ड निकाल रहे हैं D2 का रूल, T4 माइनस T3 कैसे मिलेगा, T4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ब्रैकेट में लगा रहे हैं, T3 का वैल्यू क्या है आपके पास 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करना है, 3 प्लस 3 रूट 2 ये सेम आ गया, प्लस माइनस 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 3 प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2। देखो स्टूडेंट्स फिर से यहाँ पर प्लस 3 माइनस 3 खत्म हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये प्लस है माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया, बच गया 1, तो 1 नहीं लिखते हम, छुपा देते हैं, इसके लिए मेरे पास ये भी वैल्यू ऐसे ही बच गई। इधर क्या आ गया D2, और D2 की भी वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, तो डिफरेंस हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। और आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो AP है। तो मैं फाइनली वर्ड लिख रहा हूँ डायरेक्ट वाला, उसके पहले आप सीक्वेंस वाला लिखोगे, आपका काम है वो लिखना। अब इस बार मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को आ गया है, इट इज एन AP, वो स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करोगे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें का ही, और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैंने नहीं किया वीडियो में, आप लोग ट्राई करो, और क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ये 3 क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में ये पोस्ट करूंगा, ठीक है। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आई हो तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में भी मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।